Okay, good morning to all of you all. Now, in today's lecture, first we'll recall what we had done in the previous lecture, then certain doubts and queries which were raised explicitly at the end of the previous lecture, we'll take those up, and then we'll see one more property of Laplace transform today, and that is what we are going to see. Okay. Now, in the previous lecture, what we had seen was we had seen how to find Laplace transform using division by t property. Now this property is used to find Laplace transform of a function in the form f of t upon t. Okay, so when we see this divided by t upon t, we know we are going to use division by t property. Now how do we use this property? So first of all, this upon t इसको हम गायब करेंगे, जो बचता है पहले उसका Laplace transform find out करेंगे. That is, we'll first find Laplace transform of f of t, and suppose the answer is phi of s, then Laplace transform of f of t upon t is equal to integral s to infinity phi of s ds. Okay, so this is the property we have seen. I mean, we were very clear about this property. सिर्फ इसमें दिक्कत क्या थी? I mean, we know when to use the property, how to use the property. Division है तो integration है. इंटीग्रेशन का सिर्फ एक ही बात याद रखना है, द लिमिट्स आर फ्रॉम s टू इन्फिनिटी. आई हैड टोल्ड यू ऑल कि ये पूरे लप्लास ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन आपके तीन टाइप के लिमिट्स के साथ आएंगे. एक लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, वी विल सी दैट. एक लिमिट है 0 टू t, दैट ऑल्सो वी विल सी. एक है s टू इन्फिनिटी. तो डिविजन बाय t प्रॉपर्टी है, जब आप डिवाइड बाय t करते हो, राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन होता है s डोमेन में, उसका लिमिट्स हमेशा s टू इन्फिनिटी रहेगा. ये हमें याद रखना है. ओके, सो इन दिस प्रॉपर्टी एक ही चीज जो हमें अच्छे से सीखना है वो है इंटीग्रेशन. सो वी हैव सीन दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन जो आपको रेगुलरली आएगा. व्हाट इज दैट? फर्स्ट इंटीग्रल इज 1 अपॉन s प्लस a आएगा, या फिर 1 अपॉन s माइनस a विथ रिस्पेक्ट टू s. और इसका इंटीग्रल क्या है? log of s plus a. If you have 1 upon s plus a here, उसका इंटीग्रल is log of s plus a. And if you have 1 upon s minus a here, then इसका इंटीग्रल आएगा log of s minus a. Okay, so this is the first formula. Second, integral of 1 upon s square plus a square ds. यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर का टर्म है. ये इस तरह से हम याद रखेंगे. Then this is 1 upon a tan inverse of s upon a. And the third one was integral of s upon s square plus a square. यानी न्यूमरेटर में s है, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल है हाफ log of s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये थ्री टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स रहेंगे. ओके, इसके अलावा हमने एक और चीज देखी कि अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है, यानी अगर हमें दो बार इंटीग्रेट करना है, सो जो सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी फॉर्मूला यूज करके होता है. और वो भी कौन सा इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी? द बेसिक वन जो हमने फर्स्ट सीखा था. ओके, सो वी हैड सीन वन प्रॉब्लम based on that in the previous lecture, but as all of you have asked, you want more problems. उसी तरह का आपको और problems चाहिए practice के लिए. So today I am taking up two problems of this division by t property. Okay, तो जिसमें एक में t square है. All right, so let us get started with the next one. Say we have to find Laplace transform of sin square t upon t square. अभी अपने सिलेबस में अपॉन t स्क्वायर का जो है, ए टाइप के प्रॉब्लम का स्कोप बहुत कम है. ऑल टुगेदर देर आर ओनली टू टाइप्स. One is which we had done in the previous class, where we had to find Laplace transform of 1 minus cos t upon t square, and here we have Laplace transform of sin square t upon t square. Now you can make out this is also of the same type. Okay, so anyway, let us see this. So we are going to find Laplace transform of sin square t upon t square. Okay, we see this upon t square और हमें क्या पता चलता है? डिविजन बाय t प्रॉपर्टी यूज करना है. कितनी बार यूज करना है?
दो बार यूज करना है। ओके, तो ये टी स्क्वेयर विल बी टेकन केयर बाय डिविजन बाय प्रॉपर्टी 2 टाइम्स, तो इसको हम पहले गायब करेंगे, तो बचा कौन, साइन स्क्वायर टी। तो टू बिगिन विथ हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी फाइंड आउट करना है। ओके, साइन स्क्वायर टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, 2 sin square t equals to 1 minus cos 2t. Okay, and यहाँ पर if we take this 2 to the right hand side, the same formula becomes sin square t equal to 1 minus cos 2t upon 2. तो ये अपना फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो दिस बिकम्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पर ये जो अपॉन 2 है, दिस इज अ कॉमन डिनोमिनेटर और ये कांस्टेंट है 2, तो इसको हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म के बाहर निकाल सकते हैं यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, और यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है ये सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर, राइट? तो ये सब्ट्रैक्शन भी देखा, वेयर डिड द कर्सर गो, या हियर, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है, तो जब सब्ट्रैक्शन आता है तो अगेन वी हैव गॉट लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो हम ये 2 को बाहर निकालेंगे और इसको सेपरेट करेंगे यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो क्या मिलेगा, सी दिस 2 कम्स आउट एज हाफ, और हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। अब लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसका हमें फॉर्मूला पता है। Laplace transform of cos 2t, again it is a standard formula, so we know this formula also. Let us substitute. Okay, so this is half Laplace transform of 1 we know is 1 by s, minus Laplace transform of cos 2t is s upon s square plus 2 square which is 4। तो ये हमने फॉर्मूला डाल दिया। ओके, तो हमें अभी क्या मिला, we found Laplace transform of sin square t, and which is, oh, 1 by 2 is missing here, which is 1 by 2, 1 minute. Yeah, so this is going to be equal to 1 by 2 yeah, just 1 minute, this is saving the document. Yes, so we had seen this sin square t का Laplace transform we had found out using the formula, which came out to be 1 by 2 into 1 by s minus s upon s square plus 4। So यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमें अपॉन टी स्क्वायर को पिक्चर में लाना है 1 by 1। ओके, so first we divide by t, so we are using division by t property one time here। So now Laplace transform of sin square t upon t will be equal to इंटीग्रल ऑफ द राइट हैंड साइड विथ रिस्पेक्ट टू s, और इस इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या होगा, s टू इंफिनिटी। ओके, सो दिस विल बी 1 बाय 2 इंटीग्रल s टू इंफिनिटी 1 बाय s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 ds। ओके, अब हमें ये इंटीग्रेशन करना है, तो ये एक टर्म है इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करना है। ये जो इंटीग्रल है, ये जो टर्म है, इसका इंटीग्रल करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला से। ओके, सो इसका इंटीग्रल होगा log s, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये थर्ड टाइप का है, इजंट इट, दिस इज ऑफ टाइप 3, तो फिर इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, इट विल बी हाफ ऑफ log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4। okay, see now how comfortable this particular integration is for us। okay, this is the second or third problem we are seeing, but ये type of integration हमें कितना comfortable हो गया। so let us substitute the
इंटीग्रल वैल्यूज. सो वी हैव हाफ ओवर हियर. 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन है log s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन है 1 अपॉन 2 log of s स्क्वायर प्लस 4. This thing has to be evaluated from s to infinity. Okay. अब हमें पता है कि ऐसे दो log सेपरेट है, log s माइनस हाफ log of s स्क्वायर प्लस 4. We cannot substitute infinity. If we substitute infinity, we will get log infinity minus log infinity, which is infinity minus infinity, which is indeterminate form. तो directly ऐसे हम इसको substitute नहीं कर सकते. तो we have to combine this log using log a minus log b का formula. अभी वो हमें यूज करना है, तो ये कोएफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए. Here the coefficient is half, so we will get coefficient half here also. So how do we get that? This half is here. यहाँ पर हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ लिया. So this 2 in the denominator we have brought it into the picture. तो इसको compensate करने के लिए एक 2 in the numerator भी आएगा. log s minus half log of s square plus 4 evaluated from s to infinity. Okay. अब if you see this is the step we have got. अब ये जो हाफ है ये ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये जो 2 बचता है, this 2 we will take it up and this will become log of s square. So that is what we have done in the next step. तो ये हाफ को कॉमन निकाला बाहर, already one half was present, so that half and this half becomes 1 by 4. And this 2 we have taken up, so this becomes log of s square minus log of s square plus 4 to be evaluated from s to infinity. Okay. Now the coefficients are same. Coefficient 1 है, तो we can use log a minus log b का formula, which is log of a upon b. So let us use that. This becomes 1 by 4 log of s square upon s square plus 4. The entire thing to be evaluated from s to infinity. Okay. अब हम substitute कर सकते हैं. अब यहाँ पर जब हम substitute करेंगे infinity, तो log के अंदर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है. न्यूमरेटर में s का सबसे बड़ा पावर 2 है और डिनोमिनेटर में s का सबसे बड़ा पावर 2 है. सो बोथ द पावर्स आर सेम. तो जब ऐसा रहता है, so when you substitute infinity we get log 1 here. Okay, we have seen that. And log 1 is 0, means when we substitute infinity here we'll get 0. Minus when we substitute s here we get the same term back. So on substituting the limits, what do we get? 1 by 4, 0 minus log of s square upon s square plus 4. अब ये माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करना है, तो इसका भी हमने टेक्निक देखा है. इफ यू एब्जॉर्ब दिस माइनस इनसाइड, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा. वील हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. ओके. तो हमें क्या मिलता है? 1 by 4 log of s square plus 4 upon s square. Okay. Is this the final answer? No. हमने तो अभी एक ही बार t से डिवाइड किया है ना, और एक बार t से डिवाइड करना बचा है. Yes. So we'll use division by t property one more time. So this is the statement where we have Laplace transform of sin square t upon t equal to 1 by 4 log of s square plus 4 upon s square. I think एक बार division by t property use करना सबके लिए बहुत आसान है, isn't it? All right. Now let us see the second time. Okay. यहाँ पर अगर आपने और एक बार t से डिवाइड किया, तो we'll get Laplace transform of sin square t upon t square. यहाँ t से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? We'll have to integrate the right hand side with respect to s, और इंटीग्रेशन का लिमिट होगा s to infinity. So we get 1 by 4 being a constant can be taken outside the integral. So we get 1 by 4 integral s to infinity log of s square plus 4 upon s square with respect to s. So this is what we have. Okay. अब अभी क्या बचा है? प्रॉपर्टी तो यूज कर दिया, सिर्फ ये इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. ये जो इंटीग्रेशन है लॉग, वो हमारे 3 टाइप ऑफ इंटीग्रल में नहीं बैठता है. वो 3 टाइप ऑफ इंटीग्रल आपको आएगा व्हेन यू आर यूजिंग डिवीजन बाय प्रॉपर्टी द फर्स्ट टाइम. ओके. जब आप डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी व्हेन यू आर यूजिंग इट द सेकेंड टाइम इन द सेम प्रॉब्लम, आपको ऐसे इंटीग्रल ऑफ लॉग आएगा.
तो ये इंटीग्रल ऑफ लॉग को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यूजिंग UV rule. Integral of UV is equal to U into integral of V with respect to S minus integral of derivative of U into integral of V with respect to S. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अभी इसमें U और V कैसे चूज करेंगे? लिएट रूल. ओके, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन एक ही फंक्शन है, सो वी राइट दिस एज this 1 by 4 remains as it is, integral s to infinity log of s square plus 4 upon s square into 1, because we need u into v. दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड चाहिए ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो दूसरा फंक्शन हम 1 लेते हैं. ओके, सो लॉगरिथमिक लिएट रूल में लॉगरिथमिक हमेशा पहले आता है, इसलिए हमने लॉगरिथमिक को पहले लिखा और 1 को बाद में लिखा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस रूल with u as the log function, v as the constant function 1. Okay, so let us see what we get. ये 1 by 4 वैसा का वैसा रहेगा. फर्स्ट टर्म में देखो u वैसा का वैसा है एंड वी इंटीग्रेट v, तो u एज इट इज एंड वी इंटीग्रेट v, इंटीग्रल ऑफ 1. ओके, फिर ये माइनस है, एक इंटीग्रल है, डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रल ऑफ v, तो ये u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू s. ये सिर्फ हमने फॉर्मूला डाला है. आई रिपीट अगेन कि हमने फॉर्मूला कैसे डाला है. आर u इज लॉगरिथमिक फंक्शन, v इज कांस्टेंट फंक्शन 1. ये लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर जो है v, जस्ट टेक इट एज इट इज राइट नाउ. ओके, अभी सिर्फ हमें ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ये पूरा फंक्शन इन टोटालिटी ध्यान देना है. सो वी हैव दिस लॉगरिथमिक फंक्शन इनटू 1. ओके, सो ये लॉगरिथमिक फंक्शन इज u एंड दिस 1 इज v. तो इंटीग्रल u v में पहले दिस लॉगरिथमिक फंक्शन into integral of 1 है, then minus integral of derivative of this u into integral of 1 with respect to s. Okay, and since we have substituted the formula, ये पूरा simplify करने के बाद you have to evaluate this from s to infinity. Okay, चलो अभी इसको आगे धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हैं. अभी सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन जो हमें बहुत इजी है वो है इंटीग्रल ऑफ 1 लिखना. यहाँ पर एक इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू s है, यहाँ पर एक इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू s है. ओके, तो ये दो इंटीग्रल ऑफ 1 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे. ओके, सी सिंप्लीफिकेशन जब इतना बड़ा स्टेटमेंट होता है, डू द सिंप्लीफिकेशन one by one, सब कुछ एक साथ मत करना, then it becomes very confusing. Okay, so first we'll just substitute this integral of 1, बाकी इसको ऐसे ये रखते हैं. तो हमने यहाँ पे 1 by 4 लिखा, this log function we kept it as it is, इंटीग्रल ऑफ 1 जो है उसको हमने s लिखा, माइनस दिस इंटीग्रल. अब ये डेरिवेटिव हमने लिखा नहीं है, बट फॉर फाइंडिंग दिस डेरिवेटिव इट वुड बी इजी इफ वी यूज log of a upon b, which is log a minus log b. So this derivative as it is, this becomes log of s square plus 4 minus log of s square, but log of s square can be written as 2 log s. Okay, तो इसको हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया. Integral of 1 is again s here with respect to s from s to infinity. तो ये वाले स्टेप में हमने ये वाला इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई किया है और यहाँ पर log of a upon b का हमने फॉर्मूला यूज किया है. Now we can simplify this derivative. Okay, तो ये डेरिवेटिव कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ log of a bracket is 1 upon the bracket into derivative of the bracket. Okay, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे और आपको अगर डेरिवेटिव लेना है log s का, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 upon s. Okay, so let us substitute that. We get this 1 upon 4 as it is. ये s को हमने शुरू में लिख दिया, सो दिस बिकम्स s इंटू लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, ये यहाँ पर जो s मल्टीप्लाइड है इसको भी हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया, सो s इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ अ ब्रैकेट, सो इट इज 1 अपॉन दैट ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट. ओके, माइनस 2 इज अ कांस्टेंट एज इट इज, log s का डेरिवेटिव है 1 अपॉन s and this is to be evaluated from s to infinity. Okay, तो यहाँ पर हमने ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला डाला है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला डाला है, that is it. Fine. Okay,
अब इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन बचा है, सिर्फ ये एक डेरिवेटिव बचा है, बाकी देखेंगे तो आप ये सिंप्लीफाई हो गया है। यहाँ ये एक इंटीग्रल बचा है, बट ये इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमें ये डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर इज 2s प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0, करेक्ट। तो ये सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ मिलेगा 1/4 s इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ये s को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वी गेट s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या है 2s प्लस 0, ये s इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा माइनस 2s अपॉन s टू इंफिनिटी, ओके। अब इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, ये 2s प्लस 0 इज 2s इंटू s, दिस बिकम्स 2s स्क्वायर, यहाँ पर ये s और ये s कैंसिल होगा और यहाँ पर बचेगा -2, तो लेट अस डू दिस, दिस बिकम्स 1/4 s इंटू लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये 2s प्लस 0 था 2s इंटू s, सो वी गेट 2s स्क्वायर upon s square plus 4 minus 2 s to infinity. Okay, Anupam has asked, we can use Leibniz rule instead of u into v. Okay, see Anupam, Leibniz rule which is the generalized uv rule, that is what you're talking about, correct no? उसमें क्या होता है, हमारा जो फंक्शन u है यहाँ पर, इट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, और फंक्शन u का आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे। अगर आप इस रूल में देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में u वैसा का वैसा रहेगा, बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका अगर आपने लेबनिज रूल यूज किया, यस यू कैन यूज इट ऑफ कोर्स, बट आई टेल यू क्या होगा। तो log का डेरिवेटिव आएगा, लेट मी टेक अ सिंपल log फंक्शन, log ऑफ s है सपोज, हाँ, तो log s का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन s, फिर नेक्स्ट इसमें उसका फिर से डेरिवेटिव होगा, तो 1 अपॉन s का डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन s स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में उसका फिर से डेरिवेटिव होगा, तो -1 अपॉन s स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा +2 अपॉन s क्यूब, उसका फिर से डेरिवेटिव होगा। सो यू सी दिस डेरिवेटिव इज नेवर गोइंग टू बिकम 0, तो मतलब हाँ, द डेरिवेटिव कंटिन्यू होता जाएगा, तो आपको जो मिलेगा वो एक सीरीज रहेगा, यू विल गेट अ सीरीज वेयर सो मेनी टर्म्स आर एडेड टुगेदर, बाद में आपको वो सीरीज को सिंप्लीफाई करना है, समझ में आया? वो सीरीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, बट देन दैट इज अ लिटिल बिट टीडियस प्रोसीजर, ये ज्यादा आसान है। ओके, एनीवन हैज एनी अदर डाउट? ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर दिस इज द स्टेप वी हैव गॉट, सी नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अभी ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये एक इंटीग्रल बचा है, एक बार ये हमने इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया तो फिर वी कैन सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स एंड देन वी आर डन, ओके। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, वी कैन टेक दिस 2 कॉमन, तो ये इंटीग्रेट के बाद, धीरज व्हाट हैपन, नो, किस बात के लिए नो है धीरज? अच्छा, नो डाउट्स, ओके ओके, सॉरी आई सॉ द मैसेज लेट, हाँ, ओके, दिस थिंग, ओके। तो यहाँ पर एज आई सेड, यहाँ पर हमें सिर्फ इंटीग्रल लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 को कॉमन निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1/4 s log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर माइनस, ये 2 को कॉमन निकाला तो वी हैव गॉट इंटीग्रल s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 माइनस, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास बचा 1, ओके, s टू इंफिनिटी। अब ये इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर देखो 2 टर्म्स है, ये 1 का इंटीग्रल हमें पता है विथ रिस्पेक्ट टू s, 1 का इंटीग्रल है s, ओके, इसका इशू नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी s स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी s स्क्वायर है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, s स्क्वायर के साथ में यहाँ पर कौन है +4, तो न्यूमरेटर में भी +4 -4 करेंगे, ओके, सो विल एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, so we get 1/4 s into log of s square plus 4 upon s square minus 2 into integral of, ये s square को हमने कैसे लिखा है, s square plus 4 minus 4, यहाँ पे exactly +4 ही क्यों किया, because denominator में s square plus 4 है,
ये डिनोमिनेटर हमें सेम यहाँ ऊपर लाना है, ओके। तो इसके लिए +4 किया, बट हम ऐसे ही तो +4 नहीं ना कर सकते, तो अदरवाइज देन दिस विल नॉट बी इक्वल। तो ये +4 किया, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें -4 भी करना है। Then this -1 here, this is integration with respect to s to infinity, okay। अब ये स्टेप तक हम पहुंच गए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसको डिवाइड सेपरेटली करना है, बाकी सब अपना सेट है। सी नाउ दिस वी विल डिवाइड सेपरेटली। s² + 4 अपॉन s²+4 ये हमको देगा 1 माइनस 4 अपॉन s²+4, दिस इज व्हाट वी विल गेट। तो लेट अस सी, यहाँ मिला 1/4 s इंटू लॉग ऑफ s²+4 अपॉन s² एज इट इज -2 इंटीग्रल ऑफ, ये डिवाइड सेपरेटली किया तो हमें मिलता है 1 माइनस 4 अपॉन s²+4 और ये -1 विथ रिस्पेक्ट टू s टू इन्फिनिटी, ओके। अब ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाता है, तो ये अंदर इंटीग्रल के अंदर सिर्फ ये बचता है -4 अपॉन s²+4। इसमें से ये -4 कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे, तो ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमें देगा +8, ओके। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन इन द नेक्स्ट स्टेप। सो दिस इज 1/4 s इंटू लॉग ऑफ s²+4 अपॉन s², ये -2 और ये -4, ये 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो ये -2 और ये -4 गेव मी +8 हियर। इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर फिर क्या बचा, 1 अपॉन s²+4 विथ रिस्पेक्ट टू s, दिस इज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, ओके। अब ये एक छोटा सा प्यारा सा इंटीग्रल रह गया है, बस बाकी सब अपना सिंप्लीफिकेशन हो गया है। एंड वी नो हाउ टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, इजंट इट। हमने जो 3 टाइप ऑफ इंटीग्रल देखा, उसमें ये टाइप 2 है, करेक्ट। तो लेट अस सी, this we take it in the form integral of 1 upon s² plus a²। इसको अगर a² देखा, then 4 can be considered as 2²। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1 upon a tan इनवर्स ऑफ s upon a। तो 1 upon 2, ये इंटीग्रल का फॉर्मूला है 1 upon 2 tan इनवर्स ऑफ s upon 2। बाकी सारे टर्म्स वैसे के वैसे रहेंगे, करेक्ट। So we get 1/4 s into log of s²+4 upon s² plus 8 into 1/2 tan inverse of s/2 evaluated from s to infinity। अब यहाँ पर ये 2 और ये 8 कैंसिल होगा and we will get 4, तो ये यहाँ पर 4 मिलेगा, ओके। But now simultaneously I can substitute the limit also। तो सबसे पहले जब हम infinity substitute करेंगे, यहाँ पर ये log 1 बन जाएगा, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है s का, तो सेम पावर रहेगा log के अंदर, सो दिस बिकम्स log 1 मतलब 0। तो इन्फिनिटी पे ये टर्म 0 हो जाएगा, करेक्ट। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे ये 1/4 एज इट इज, इन्फिनिटी डाला तो ये 0 हुआ, प्लस ये 8 इंटू हाफ दैट इज 4 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर इंफिनिटी डाला, इंफिनिटी अपॉन 2 इज इंफिनिटी, सो वी गेट tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। तो फर्स्ट लिमिट डाल दिया, सेकेंड लिमिट के लिए सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगा, सो ये दिस विल बिकम माइनस, s के जगह पे s डालेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, तो वी गेट s log of s²+4 upon s²। Here we are subtracting, so this plus will become minus, 8 into half is 4 tan inverse of s/2, okay। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू हमें आता है, isn't it? What is tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी? π/2। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और तो कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो वी गेट 1/4, 0 प्लस दिस एंटायर थिंग विल बी द सेम थिंग, तो ये 4 यहाँ आएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2 माइनस s इंटू log of s²+4 upon s² minus 4 tan इनवर्स ऑफ s/2। सारे सिंप्लीफिकेशन हो गए। एक छोटी सी बात यहाँ कर सकते हैं, 2 कैन बी कैंसल्ड हियर, तो 2 1s are 2 2s are, so we are left with 2 pi here, so we get 1/4 2 pi minus s into log of s²+4 upon s² minus 4 tan inverse of s/2, okay। So this could be a final answer। आप चाहे तो ये ब्रैकेट ओपन करके 1/4 को आंसर अंदर ले सकते हैं, उससे हमें it doesn't make a difference, okay, you can leave the answer here also।
Did we understand this? सबको समझ में आया? Yes, okay. This is, ये थोड़ा लेंदी है, बहुत भारी है, ओके, बट देन इसको देखना, एक दो बार सॉल्व करोगे आप, एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा, देन यू विल फाइंड दिस मोर कंफर्टेबल, ओके। ऑल राइट, तो अभी डिवीजन बाय टी में एक और प्रॉपर्टी देखते हैं अगेन। हाँ, या, यस, 1 मिनट, दिस वन, ये वाला, हाँ, करेक्ट, हम्म, करेक्ट, करेक्ट, नहीं 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 होगा, इन्फिनिटी इंटू जीरो इज अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी इंटू जीरो जो है ना, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इसको दो तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको, ओके। ये जो 1 मिनट, द कर्सर, हाँ, ये जो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे, मे आई हैव योर नेम प्लीज? सनमित, हाँ, यस सनमित, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। बाकी सब खुश थे, अरे भाई जीरो हो रहा है ना, जाने देना, इसमें टेंशन क्यों लेना है, जीरो हो रहा है, खत्म। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इसका मैं आपको दो तरीके से इसका हम आंसर मैं बता सकती हूँ। सी, वन इज जब हम इंफिनिटी डालते हैं, दिस बिकम्स इंफिनिटी into 0, that is log 1 is 0, okay, infinity into 0 is indeterminate form, तो इसको हम लोपितास रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो लोपितास रूल से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 0। लोपितास रूल में हम लोपितास रूल, यू नो लोपितास रूल, राइट सनमित? ओके, तो लोपितास रूल हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा जो ये जो टर्म है, इट इज ईदर इन जीरो अपॉन जीरो फॉर्म या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, करेक्ट ना? तो यहाँ पर ये s इज इन इंफिनिटी फॉर्म, log इज इन जीरो फॉर्म, तो दिस इज इंफिनिटी इंटू जीरो, तो इन दोनों में से किसी एक को डिनोमिनेटर में खींचना पड़ेगा हमें, तभी वो वो फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे log को खींचने से अच्छा s को डिनोमिनेटर में खींचेंगे, सो दिस विल बिकम log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर अपॉन, ये s नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो इट विल कम डाउन एज 1 बाय s, करेक्ट, एंड देन वी यूज लोपिताज रूल। अच्छा, इसका जो उत्कर्षा 2 मिनट्स, आई विल जस्ट फिनिश दिस एक्सप्लेनेशन। मैं एक काम करती हूँ, इसका जो लोपितास रूल से ये आंसर जीरो कैसे आता है, ये आपको मैं सॉल्व करके क्लासरूम में ये अपलोड करती हूँ, ठीक है। इट इज जस्ट वो लिमिट इवेलुएट करना है। लोपिताज रूल में क्या करते हैं हम, लिमिट ही तो इवेलुएट करते हैं ना, तो इट इज वेरी सिंपल। लोपिताज रूल थोड़ा लेंदी है, एक 4 से 5 स्टेप आएगा, बट इट इज वेरी सिंपल। तो वन, वी कैन सॉल्व दिस बाय लोपिताज रूल, या फिर और एक दूसरी तरीके से अगर आपको देखना है इसे, तो आई कैन गिव यू वन मोर वर्चुअल विजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, ओके, एक है फंक्शन s विच इज अ लीनियर फंक्शन, दूसरा है फंक्शन लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग देम, तो वी आर गेटिंग वन फंक्शन। अब इसका आंसर क्या होगा, एज इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। अभी ये जो ये कैसे है ना, एज s becomes infinity, this function, this algebraic function that is s, ये s, ये किस तरफ जा रहा है, इंफिनिटी के तरफ जा रहा है। व्हेन यू पुट इंफिनिटी हियर, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, करेक्ट। और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, व्हेन यू पुट इंफिनिटी, वो जीरो की तरफ जाता है, करेक्ट। तो दोनों दो अलग वैल्यू पे जा रहे हैं, एक इंफिनिटी पे जा रहा है, एक जीरो पे जा रहा है। बट इन दोनों फंक्शंस में लॉगरिथमिक फंक्शन इज द फास्टर फंक्शन। फास्टर फंक्शन का मतलब है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो फास्टर फंक्शन है, तो ये पहले वो उस फंक्शन की वैल्यू की तरफ भागेगा, ओके। तो इसके लिए दिस s गोज टू इंफिनिटी, 1 मिनट,
where is the cursor? Yeah, s goes to infinity, logarithmic function goes to 0, लेकिन उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो फास्टर फंक्शन है उसका वैल्यू वो अटेन करेगा, करेक्ट? तो इन दोनों में से फास्टर फंक्शन इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, तो दैट इज व्हाई इट टेक्स द वैल्यू 0. ये ग्राफिकली अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो ये हमें बहुत इजीली दिखता है. इज इट लिटिल बिट ओके? ओके, इसका जो लोपितास रूल का जो सिंप्लीफिकेशन है दैट आई विल अपलोड इट टुडे इटसेल्फ, ठीक है? या उत्कर्षा, सेकेंड स्टेप ऑफ दिस स्लाइड, ये वाला स्लाइड, करेक्ट? उत्कर्षा, उत्कर्षा आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर स्टेप? ओके, अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, ये देखो, ये 1/4 वैसा का वैसा है, 1/4, एस वैसा का वैसा है, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर भी वैसा का वैसा है, -2 भी वैसा का वैसा है, इंटीग्रल है. हियर वी हैव एस स्क्वायर प्लस 4 -4, करेक्ट, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. इसको हमने डिवाइड सेपरेटली किया है. डिवाइड सेपरेटली का मतलब क्या है? सपोज इफ आई हैव a प्लस बी अपॉन सी, c is the common denominator, I can write it as a upon c plus b upon c, करेक्ट? सेपरेट कर सकते हैं ना डिनोमिनेटर को, वही किया है. एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. समझ में आया? दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस. अब ये एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 क्या आएगा? दोनों कैंसिल होता है और हमें 1 मिलता है. -4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 वैसा का वैसा रह जाता है. फिर ये -1 ds लिमिट्स s टू इंफिनिटी. गॉट इट नो? ओके, गुड. और किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? यहाँ पर देखो, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है. हमें प्रॉपर्टीज याद रह जाती है, बड़े बड़े फॉर्मूलाज याद रह जाते हैं, बट इफ वी गेट स्टक अप बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, सो प्लीज मेक दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लियर. ओके, और किसी को इस स्लाइड में या इस प्रॉब्लम में कोई और डाउट है? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. कोई डाउट है? दैट वाज अ वेरी रिदमिक नो. ओके, चलो. अच्छा, मुझे आपको सिर्फ ये इसका एक एक्सप्लेनेशन देना है, द डाउट विच सनमित हैज आस्क्ड. ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में. The next problem is find Laplace transform of e raised to at minus e raised to bt upon t. Okay. Oh, sorry, 1 minute. यहाँ पर फिर से this should be 1 minute. बाय मिस्टेक t के जगह पे वहां पर अपना t स्क्वायर आ गया था. Yes, this is the one we are talking about. ये सेव करने के लिए सिर्फ 2 सेकेंड लगेगा, सिंस इट इज इक्वेशंस नो, तो थोड़ा फाइल हैवी है. we'll just wait till it gets saved. Yeah, it is done and we start from the current slide. Okay, so that was a typing error. यहाँ पर t है, ये by mistake t square हो गया था. So we have to find Laplace transform of e raised to at minus e raised to bt upon t. Okay. अच्छा, अब ये t को देखकर हमें, आई मीन अपॉन t को देखकर डिवीजन बाय t याद आता है, करेक्ट? ओके, इसमें तो डाउट नहीं है ना. माय क्वेश्चन इज, ये e रेस टू at को देख के फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद आता है क्या? यू कैन से यस और नो. नो परेश, क्यों? e रेस टू at को देख के फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद आना चाहिए ना. सेम वे e रेस टू bt भी है. रत्नदीप सेज यस.
Many of you are saying no. Utkarsha, Lalit, Amit, Amol, all of you are saying no. क्यों फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद नहीं आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख के? दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. Because no multiply with other term. Very good, Amit. Sushil has also said कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं है. उत्कर्षा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड एट लास्ट, करेक्ट है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज इस प्रॉब्लम में फर्स्ट शिफ्टिंग यूज होगा ही नहीं. क्यों? फर्स्ट शिफ्टिंग तभी यूज होता है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तब. ऑपरेशंस पे ध्यान देना है. यू रिमेंबर वो ऑपरेशंस मैंने एक्सप्लेन किया था. मल्टीप्लीकेशन रहेगा e रेज टू at या e रेज टू माइनस at के साथ, तब भी हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. वेरी गुड अमित एंड सुशील, आपको एसेंस बहुत अच्छे से समझ में आया है. ओके, सो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है. e रेज टू at के साथ कोई मल्टीप्लाइड नहीं है, कोई और फंक्शन मल्टीप्लाइड नहीं है. e रेज टू bt के साथ कोई और फंक्शन मल्टीप्लाइड नहीं है, जबकि ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब्ट्रैक्टेड है. इसलिए यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं आएगा. यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आएगा, वो है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी. ओके फाइन. अब ये जो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी है, अपॉन टी को देख के पता चलता है, तो सबसे पहले इसको गायब करेंगे. जो बचता है उसका हम पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे. सो वी नीड टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू at माइनस e रेज टू bt. यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो इसको सेपरेट करेंगे यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, विच गिव्स अस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू at माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू bt. अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू at इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन, ये फॉर्मूला हमें आता है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू bt इज आल्सो स्टैंडर्ड फंक्शन, ये फॉर्मूला भी हमें आता है. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट. इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 1 अपॉन s माइनस a माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू bt भी आएगा 1 अपॉन s माइनस b. ओके, तो हमें मिला लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू at माइनस e रेज टू bt इज 1 अपॉन s माइनस a माइनस 1 अपॉन s माइनस b. अब हमें डिवाइड बाय टी करना है, तो यहाँ लेफ्ट में हमने डिवाइड बाय टी किया, तो राइट हैंड साइड में we'll have to integrate with respect to s. Okay, so this will be integrate from s to infinity 1 upon s minus a minus 1 upon s minus b with respect to s. Okay, तो अभी हमें ये दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करना है. ये पहले टर्म को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? वो इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला 1 अपॉन s माइनस a का इंटीग्रल होगा log ऑफ s माइनस a माइनस 1 अपॉन s माइनस b का इंटीग्रल होगा log ऑफ s माइनस b. ओके, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दिस बिकम्स log ऑफ s माइनस a माइनस log ऑफ s माइनस b टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम s टू इंफिनिटी. ओके, अब हम डायरेक्टली लिमिट इंफिनिटी नहीं डाल सकते, देन इट विल बिकम log इंफिनिटी माइनस log इंफिनिटी, फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो हमें पहले क्या करना है, इन दोनों log में log को वी हैव टू यूज log a माइनस log b का फॉर्मूला, विच इज log ऑफ a अपॉन b. ओके, s टू इंफिनिटी. अब क्या होगा, जब हम इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये log के अंदर जो फंक्शन है, देखो न्यूमरेटर में s टू द पावर 1 है, डिनोमिनेटर में s टू द पावर 1 है, मैक्सिमम पावर, दोनों का पावर सेम है. मतलब व्हेन यू पुट इंफिनिटी दिस विल बिकम log 1 which is 0. ओके, तो या दिस इज व्हाट वी गॉट. तो जब इंफिनिटी डाला तो ये log 1 यानी 0 हो जाएगा, माइनस सेकेंड लिमिट में जब हमने s डाला तो वी गेट log ऑफ s माइनस a अपॉन s माइनस b. अब हमें ये माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करना है, तो हमें क्या मिलेगा, this will become log of s minus b upon s minus a, and that is the final answer. See, division by t property is so sweet, और हमें इंटीग्रेशन करना भी आ गया. Only thing we need to take care is when we have to use division by t property twice in the same problem. But as I told you, हमारे पास ज़्यादा problems नहीं है. Whatever 2 problems I have taken in the sessions, no, last session में एक लिया था, आज के session में एक लिया है, यही
प्रॉपर्टीज है। एक ही डिफरेंस क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर 2t आ सकता है, यू नो दैट ओनली द एंगल कैन चेंज, बाकी प्रोसीजर विल रिमेन द सेम। यहाँ तक ठीक है? एनी कंफ्यूजन? Okay. Are we comfortable with division by T property? I ask very contradictory question. एक क्वेश्चन का आंसर yes होता है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ना no होता है. Okay, great, great, great. Thank you, dears. Okay. So, shall we go for the next property now? Laplace transform of derivative. एक प्रॉब्लम आज देख लेते हैं. वी हैव गॉट 10 मोर मिनट्स ना. एक प्रॉब्लम आज देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. इट इज वेरी सिंपल. ओके, एंड देन वी विल प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, अब ये देखो, इफ f of t is sin t upon t, then find Laplace transform of f dash t. This dash stands for derivative with respect to t. Okay, तो ये अपना फंक्शन दिया है f of t. हमें ये फंक्शन f of t का लप्लास नहीं फाइंड आउट करने बोला है, हमें इसका डेरिवेटिव का लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने बोला है. तो यू मे वंडर इसमें बड़ी बात क्या है. तो इसका तो डेरिवेटिव लेने हमें आता है, तो डेरिवेटिव लो और लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो. ओके, उसका मैं आपको एक आई विल टेल यू समथिंग अबाउट दिस. हमें फाइंड आउट करना है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी. यहाँ पर ये फंक्शन आपको पता है साइन टी अपॉन टी, और आप इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हो u अपॉन v फॉर्मूला यूज करके. बट लेट अस जस्ट सी कि वो क्या होगा. सी एफ डैश टी means derivative with respect to t of sin t upon t, बराबर. तो u upon v फॉर्मूला यूज किया तो you will get denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. ये हमने फॉर्मूला डाला. अब इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव हमें सब्सटीट्यूट करना है. डेरिवेटिव ऑफ साइन टी हमें पता है cos t, और डेरिवेटिव ऑफ t भी हमें पता है 1. तो लेट अस सी व्हाट वी गेट. सो वी गेट t into डेरिवेटिव ऑफ साइन t which is cos t. So we get t into cos t minus sin t into derivative of t is 1. So we get sin t upon t square. तो हमें इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने में मजा आएगा. यहाँ पर क्या है, अपॉन टी स्क्वायर है. वी कैन फाइंड आउट, बट दिस अभी हमने एक्सपीरियंस किया ना, अपॉन टी स्क्वायर मतलब डिवीजन बाय प्रॉपर्टी कितनी बार यूज करना है, 2 बार. और फर्स्ट टाइम तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी बहुत मजे में यूज हो जाता है. फर्स्ट टाइम हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो तो आराम से हो जाता है. बट सेकेंड टाइम जब हम डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो सेकेंड टाइम जब उसको इंटीग्रेट करते हैं वो थोड़ा लेंदी हो जाता है. It is not difficult, it is not impossible, but it is lengthy. Okay, so here we are going to see another convenient way of dealing with the same thing. Okay, and that is we can use Laplace transform of derivative property. तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर आपको फाइंड आउट करना है Laplace transform of f dash of t, if you want to find Laplace transform of f dash of t, okay, and you observe कि डायरेक्ट f dash of t का Laplace transform फाइंड आउट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, then this property says first find Laplace transform of f of t. पहले आप f of t का Laplace transform फाइंड आउट करो. सपोज वो आया phi of s. ओके, देन नाउ दिस, ये प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से समझना है. दिस इज अ स्टेटमेंट. मैं इसका आपको पैटर्न बताती हूँ कि ये स्टेटमेंट कैसे याद रख रहा है. ओके, तो इफ लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज फाई ऑफ एस, देन लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसको सामने रखना है. ओके, और इसका डेरिवेटिव ले रहे तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी मिलेगा. करेक्ट. देन इसका देखो आंसर क्या आएगा, ये जो राइट हैंड साइड है उसको s से मल्टीप्लाई करना है, s. तो वी गेट s इंटू फाई ऑफ s माइनस ये जो अंदर फंक्शन है दैट एट 0, दैट इज माइनस, यहाँ पर अंदर f ऑफ t है तो माइनस f ऑफ 0. दिस इज द स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट याद रखना है. ओके,
बट रिमेंबर द पैटर्न इन द स्टेटमेंट. हमने Laplace transform of f of t equal to phi of s को सामने रखा. If you want Laplace transform of derivative of this, what you have to do? Right hand side will be multiply this by s minus this value of this function at t equal to 0. So that is f of 0. Okay. So this is the statement. यहाँ पर f of 0 मतलब क्या? f of 0 को और better way में समझना है तो it is limit t tends to 0 f of t. Okay. Means you're taking f of t and in this you're putting t equal to 0. You're finding the limiting value of this function at 0. Okay. All right. Now suppose I ask you to find Laplace transform of f double dash t. इसका देखो हमें हायर डेरिवेटिव का भी जरूरत पड़ सकता है. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी कैसे आएगा? उसके लिए ये वाला स्टेटमेंट हमको सामने रखना है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस इंटू फाई ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0. इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डबल डैश टी आएगा. करेक्ट. तो इसका आंसर क्या आएगा? राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई बाय एस. अगर ये पूरा राइट हैंड साइड को अगर आपने s के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा? s स्क्वायर इंटू फाई ऑफ s माइनस s इंटू एफ ऑफ 0. ये राइट हैंड साइड को s के साथ मल्टीप्लाई किया और लिखा यहाँ पर, देन माइनस दिस एट t इक्वल टू 0, दैट विल बी माइनस f डैश ऑफ 0. पैटर्न समझ में आ रहा है? ओके. तो Laplace transform of f double dash, that is second derivative f of t is s square into phi of s minus s into f of 0 minus f dash of 0. Suppose I want you to find, okay, here f dash of 0 means f dash t में हम t equal to 0 डालेंगे, that is limiting value of f dash of t as t tends to 0. अब इसमें अगर मैंने आपको थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने बोला, सामने कौन सा स्टेटमेंट रखना है? सेकेंड डेरिवेटिव का स्टेटमेंट को सामने रखना है. क्यों? बिकॉज ये सेकेंड डेरिवेटिव को आप डेरिवेटिव निकालोगे तो थर्ड डेरिवेटिव मिलेगा. ओके. तो प्रीवियस डेरिवेटिव वाला स्टेटमेंट को सामने रखना है. सो Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t विल बी, कैसे मिलेगा? ये पूरा राइट हैंड साइड को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? s के साथ माइनस वैल्यू ऑफ दिस एट t इक्वल टू 0. अब ये पूरे राइट हैंड साइड को अगर आपने s के साथ मल्टीप्लाई किया तो पहला टर्म मिलेगा, ये s स्क्वायर है ऑलरेडी यहाँ पर, एक s के साथ मल्टीप्लाई किया तो s क्यूब इंटू फाई ऑफ s. यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा माइनस s स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 0. यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा माइनस s इंटू एफ डैश ऑफ 0. ये हमने पूरे राइट हैंड साइड को s के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस ये वाला फंक्शन एट t इक्वल टू 0, दैट गिव्स अस माइनस f डबल डैश ऑफ 0. ओके. तो ये f डबल डैश ऑफ 0 क्या है? इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f डबल डैश t एट t टेंड्स टू 0. तो ये जो Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें हम we will, suppose if you want the Laplace transform of fifth derivative, तो we develop it one by one. पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का लिखेंगे, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का. ओके. इन आवर सिलेबस वी वोंट हैव दिस मच. मैक्सिमम वी कैन हैव इज अप टू द सेकेंड डेरिवेटिव. ओके. थर्ड डेरिवेटिव भी नहीं आएगा. यूजुअली इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, बट देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स ऑन सेकेंड डेरिवेटिव. बाकी आपको पैटर्न समझ में आया Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का कैसे याद रखना है? ओके. तो ये एक प्रॉब्लम में हम इस इसमें हम इसको यूज करते हैं. ओके. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं. लेट अस चेक वेदर इसका सॉल्यूशन एक्चुअली इजी है क्या. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर हमें Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t फाइंड आउट करना है तो पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t. f ऑफ t मतलब sin t अपॉन t. अब ये Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हमने ये अपॉन टी देख लिया. ये अपॉन टी देखेंगे तो कौन याद आया? डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी. तो हम ये अपॉन टी को गायब करेंगे. कौन बचता है? Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी. तो वी बिगिन विथ Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हमें पता है. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इज 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, विच इज 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. ओके. तो ये हमें मिला
लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। अब इसमें डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो मिलेगा लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी। यहाँ डिवाइड बाय टी किया तो राइट हैंड साइड विल गेट इंटीग्रेटेड with respect to s from s to infinity. So we get integral s to infinity 1 upon s square plus 1 with respect to s. Okay. अब ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सेकेंड टाइप। तो here this is of the form 1 upon s square plus a square. तो 1 is a square मतलब अपना a जो है वो 1 है। तो इसका आंसर, इस इंटीग्रल का आंसर आएगा 1 upon a tan inverse of s upon a. But since a is 1 here, that 1 upon 1 is 1, right? So I have not written it. Tan inverse of s upon 1 is s. So we just get tan inverse of s to be evaluated from s to infinity. अब चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट्स। पहले इन्फिनिटी डालेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस फिर हम s डालेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स ऑफ s। अब हमें tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू पता है, इट इज π/2, तो सब्स्टिट्यूट किया माइनस tan इनवर्स ऑफ s। इसको हम ऐसे ही डाल सकते हैं बट हमें ये पता है कि π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s इज cot inverse of s. Okay, so we use this also. So this becomes even more simplified. तो हमें मिला Laplace transform of sin t upon t equals to cot inverse of s. ये जो sin t upon t था ये था अपना f of t, करेक्ट? तो हमें पहले Laplace transform of f of t फाइंड आउट करना था, वो हमने कर दिया। Laplace transform of f of t is cot inverse of s. अब ये यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? जो राइट हैंड साइड है उसको हम s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा s इंटू कॉट इनवर्स ऑफ s माइनस वैल्यू ऑफ दिस एट जीरो, दैट इज f ऑफ जीरो। ओके, तो अब हम सिर्फ ये f ऑफ जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, देन वी आर डन। तो f ऑफ जीरो क्या है? f ऑफ जीरो इज f ऑफ t में आप t के जगह पे जीरो डालो, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ t एज t टेंड्स टू जीरो। अब इसमें हम f ऑफ t सब्सटीट्यूट करते हैं, सो दिस इज लिमिट t टेंड्स टू जीरो, f ऑफ t के जगह पे मिला sin t अपॉन t। अब इसमें अगर आपने डायरेक्ट जीरो डाला तो यहाँ होगा साइन जीरो विच इज जीरो अपॉन जीरो, तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में आता है। जीरो अपॉन जीरो फॉर्म जो है वो अपना लोपितास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर लोपितास रूल यूज करना है। लोपितास रूल इज यूज व्हेनेवर यू हैव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो बनते हैं या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर इन्फिनिटी बनता है, तो वी कैन यूज लोपितास रूल। और ये लोपितास रूल क्या बोलता है? अगर ये जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में है, देन लिमिट t टेंड्स टू जीरो f ऑफ t अपॉन g ऑफ t इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू जीरो f डैश t, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेकर न्यूमरेटर में लिखना है, अपॉन g डैश t, दैट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेकर डिनोमिनेटर में लिखना है। यहाँ पर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, सो वी आर यूजिंग लोपितास रूल। सो दिस बिकम्स लिमिट t टेंड्स टू जीरो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, न्यूमरेटर में लिखा, साइन t का डेरिवेटिव है cos t, तो उसको न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया और डिनोमिनेटर में लिखा, t का डेरिवेटिव है 1 तो डिनोमिनेटर में लिखा। ओके, नाउ वी कैन पुट t इक्वल टू जीरो। अब अगर हमने t इक्वल टू जीरो डाला तो वी गेट cos जीरो, और cos जीरो क्या है? 1, मतलब इसमें हमें f ऑफ जीरो क्या है? 1। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन दिस इलेबोरेटली, या फिर आप लोगों ने ये भी, आपको ये भी याद होगा 12th में ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, लिमिट t टेंड्स टू जीरो साइन t अपॉन t इज 1, तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। इस 1 को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, सो वी गेट आवर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t वुड बी इक्वल टू s into cot inverse of s minus 1. Okay, and that is the final answer. So यहाँ तक तो हमने डिविजन बाय टी प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम यूज किया है। इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव निकाल के फिर लैप्लस ट्रांसफॉर्म करते तो वो और थोड़ा लेंदी हो जाता था। इंस्टेड ऑफ दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का अगर हमने फॉर्मूला यूज किया तो सी इट इज सो इजी, ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। वो फॉर्मूला का भी हमने आपको पैटर्न बता दिया है, सो इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर इट। ये समझ में आया?
यस, ओके। तो एनीवे मैं आपको आई एम गिविंग यू 1 डे टू डाइजेस्ट दिस, ये आपको थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए मैं 1 डे दे रही हूँ। वन प्रॉब्लम इज देयर, आई हैव ऑल्सो गिवन यू सर्टन फ्यू प्रॉब्लम्स। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी। ये सिर्फ ट्राई करना आप, हाँ, ट्राई करके आपको चेक वेदर यू आर एबल टू work it out and find out this Laplace transform using Laplace transform of derivative वाला property use करके आप इसको try करना, okay? And then if you have any difficulty, please post your difficulties, we'll answer that. That is all for today's lecture. आपका आज का जो next lecture में we will see a few more problems on Laplace transform of derivative. Two more problems we are going to see, and we will also see Laplace transform of integral property. Okay, derivatives के बाद integral का property देखेंगे. This is what we will see in the next lecture. Okay. आज आपका जो quiz है ये आपको by evening it will be posted. Right now I'm not posting the quiz. Okay. जस्ट चेक दिस पीडीएफ अभी मैं अपलोड कर रही हूँ गूगल फॉर्म में, गूगल क्लासरूम में, आज का जो लेक्चर का है. सो प्लीज गो थ्रू टुडेज प्रॉब्लम्स. इट वाज लिटिल बिट हैवी. हर एक स्टेप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत सारे स्ट्रेटजीज थे. मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ओके, उसके बाद बाय इवनिंग आई विल अपलोड द क्विज. यू कैन आंसर द क्विज ऑल्सो. ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड 6 minutes. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. कोई डाउट नहीं? ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच डियर्स. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.